see the dweller, he was able to defeat the dividend forces in their land only. और कहते हैं कि जनरल जोरावर सिंह ने उनका फ्लैग भी कैप्चर किया था, कलर्स फ्लैग, और वो फ्लैग आज भी, एंड एक्चुअली बाल्टिस्तान में दे वर कॉल्ड बिकॉज देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सन एंड फादर। अहमद शाह थे और मोहम्मद शाह उनके बेटे, तो वो बेटे ने कॉल किया था कि मुझे गद्दी दिलवाओ। और ये कहते हैं कि गुलाब सिंह ने बात भी की थी महाराजा रंजीत सिंह के कि वी शुड मूव टू दैट डायरेक्शन, तो महाराजा रंजीत सिंह वॉज नॉट इंटरेस्टेड। Also, another confusion, and that is with regard to who was his successor, whether he left any son, because official records. So that way, both can claim him, but we claim him more because he was a Dogra. He belonged to a, he started his career. के बर्थ को लेके कंफ्यूजन है। उनका बर्थडे भी 2 दिन मनाया जाता है। हाँ, वो इट्स ट्रू जूही। हेलो, हाय एंड वेलकम मित्रों। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम, तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिस्टोरिक फिगर के बारे में जिनको हर कोई क्लेम करना चाहता है। होते हैं ना कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज जिनको हर कोई अपना रिश्तेदार बनाना चाहता है, तो ऐसे ही एक हिस्टोरिक फिगर हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट, आवर हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। मृणालिनी जी, नमस्कार। हाउ आर यू डूइंग? फाइन जूही। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर के बारे में बात करने वाले हैं, जनरल जोरावर सिंह जी। मतलब डोगरास कहते हैं हमारे हैं, सिख कहते हैं हमारे हैं, एक्चुअली तो दोनों के ही हैं, लेकिन हैं डोगरा, और वी टेक प्राइड इन हैविंग हिम एज अ डोगरा। यस, ट्रू। बट थोड़ा सा उनके बर्थ को लेके कंफ्यूजन है। उनका बर्थडे भी 2 दिन मनाया जाता है। हाँ, वो इट्स ट्रू जूही। जैसे आपने पहले भी बोला कि एवरीबडी वांट्स टू क्लेम हिम, तो सिख भी उनको क्लेम करते हैं, डोगरास भी करते हैं, बट in fact it's in somewhat correct also, because when he captured Ladakh, Baltistan, and he went up to Western Tibet, he was at that time general of the Sikh state, under the immediate command of Raja Gulab Singh, but actually it was a Sikh state which was funding it. He was at that time the commander of the Sikh state only. So that way, both can claim him, but we claim him more because he was a Dogra. He belonged to a, he started his career in the employment of Jammu rulers. His birth was from Ansar. Ansar एक place है हिमाचल प्रदेश में। तो जो जिनियोलॉजी है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, उसमें है कि उनका बर्थ अंसार में हुआ, कलोर स्टेट में, एंड आफ्टर सम टाइम देयर फैमिली माइग्रेटेड टू जम्मू। ओके, तो उनका जो बर्थ है वो जो हम मनाते हैं, जैसे 12th of April, he was born on 12th of April 1781 and he died on 12th of December 1841 during the battle in Lhasa. But if you look at the two important documents, and those documents are, one is Gulabnama of Kirparam, Diwan Kirparam, who was the official of Maharaja Gulab Singh, and STS Charak, who has translated Gulabnama, and he has also written a book on General Zorawar Singh by the name General Zorawar Singh. Okay. So these are claimed as official records, and in these records the date of birth is in 12th of September. It's September, not April. Acha. And but if you go through the genealogies, what we claim now, it is the official जो है Ministry of Information का, that is 12th of April. Even the army celebrates it in April only. Okay. So that is why his death anniversary is more celebrated, because that's certain that he died. And वैसे भी heroes का तो जो martyrdom है वो ही celebrate किया जाता है. Secondly, there is also another confusion, and that is with regard to who was his successor, whether he left any son,
बिकॉज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उसका अगेन ये है कि ही हैड 3 वाइफ्स. One wife was from Amgarota village. अच्छा. Rajput, Lange Rajput. She was from Lange family of Amgarota, and 2 other wives were sisters. And they was again from a place called Poni. Poni Parak, वो एक place है वहाँ से. And it is officially written in by STS Charak that he did not have any son. So there is no direct lineage from him. But if you look at the land records of Ansar or at Rajouri, Riasi, where his family was living, Vijaypur, there we find in the land records that Zorawar Singh was succeeded by his son Indra Singh, and then Indra Singh had again 2 sons, Chhatra Singh and one more. So land records में तो नाम है, अब वो it's again a confusion कि what it was. And sometimes it is also said, there's a story that when Hira Singh was he died in a conflict, जो वो conspiracy was Sikh state में हुई थी, Indra Singh was also, there was one person, Indra Singh also died, so probably he was son of Zorawar Singh. But these are all stories, लेकिन श्योर कुछ नहीं है. मतलब it has not been established. Okay. But a story continues. Okay, okay. उनकी जो सबसे पहली एम्प्लॉयमेंट थी, that was not with गुलाब सिंह जी. No, his first employment was with a tiny principality जिसको बोलते हैं मरमत. वो डोडा में है. ओके. डोडा में है. वहाँ के एक रूलर थे राजा जसवंत सिंह, उनके पास ही was employed as orderly. अच्छा. यहाँ पे भी एक confusion है कि when you go through the different articles or the books which are being written, तो उसमें वो कहते हैं कि मरमत was रामनगर, but it was not रामनगर, because गुलामनामा में clearly stated है कि ये डोडा की एक प्रिंसिपैलिटी थी, छोटा सा राज्य था, वहाँ पर he started as orderly. अच्छा. And then he came to Jammu because he had so much of aspirations and valor. He, the destiny could not confine him to just being an orderly. तो he came to Jammu. और हमने I think इनिशियल एपिसोड्स में हमने बात की थी कैसे वो धोंतली जब हमने ढक्की पे बात की थी, तो ढक्की पे कैसे उनकी मुलाकात हुई, एंड गुलाब सिंह वाज इम्प्रेस्ड, और वो उन्होंने उनको रियासी में जो उनका किला है वहाँ पर स्टेशन किया. देन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिफरेंट मीटिंग्स व्हेन ही हैड, तो जनरल जोरावर सिंह ने उनको गुलाब सिंह को बोला कि हमारा यहाँ रेवेन्यू का इतना वेस्टेज है ये फोर्ट्स में ही, तो गुलाब सिंह वॉज इम्प्रेस्ड, तो उन्होंने उनको रियासी का दे दिया, और बाद में उन्होंने जितने भी फोर्ट्स थे नॉर्थ ऑफ जम्मू उन सबकी कमांड कमिश्नर जो कि लॉजिस्टिक सप्लाईज का होता है वो जनरल जोरावर सिंह को बना दिया. एंड व्हेन ही कैप्चर्ड नेक्स्ट किश्तवाड़, सो किश्तवाड़ के जो वज़ीर थे वो जनरल जोरावर सिंह को बनाया, और जब वो किश्तवाड़ के वज़ीर बन गए उसके बाद उनका वो जो इतना हेलोनेस है जिस एक्सपेडिशन की कि ही वेंट टू बियॉन्ड द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, जो आज कभी कोई गया नहीं था, तो वो उन्होंने किया. वो कहानी उनकी किश्तवाड़ से शुरू हुई. ओके. एक और आई थिंक जो उनका बहुत इम्पोर्टेंट रहा, दैट वाज लेह लद्दाख वाला. वो उनको वहीं पर आई थिंक वो आइडिया आया था कि वी कैन एक्सप्लोर दिस पार्ट. इसमें भी एक अगेन there's so many anecdotes ना attached. तो कहते हैं कि गुलाब सिंह या जनरल जोरावर सिंह के दिमाग में ये चीज़ थी कि अब किश्तवाड़ से नेचुरल एक्सपेंशन तो किस तरफ करें, और ये कहते हैं कि गुलाब सिंह ने बात भी की थी महाराजा रंजीत सिंह के कि वी शुड मूव टू दैट डायरेक्शन. तो महाराजा रंजीत सिंह वॉज नॉट इंटरेस्टेड, बट स्टिल बीइंग द वजीर ऑफ किश्तवाड़, तो जनरल जोरावर सिंह ने एक्सपेंशन शुरू किया टूवर्ड्स डचन, मारवाड़, डचन करते करते वो लद्दाख की लेह की तरफ पहुंचे. एंड इन लेह before he went to Leh, in between there was a Boti tribe, वो उन्होंने उनको सबड्यू किया, फिर वो लेह पहुंचे. लेह was being ruled by ग्लैपो, वो जो लोकल रूलर होते हैं उनको बोलते हैं ग्लैपो.
तो he was probably from Tibet, but he was ruling there in Leh. So when they went, so first that ruler, he sent one of his general. That general was killed, and then Leh was subdued, and they were imposed a war indemnities of rupees 50,000, and then also they had to pay the annual tribute. साथ में ही उन्होंने राजा ऑफ जिंस्कार जो साथ में ही थी स्टेट, उसको भी सबड्यू करके उनको बोला कि एनुअल ट्रिब्यूट, वो भी मान गए कि एनुअल ट्रिब्यूट दे दो. देन ही केम बैक. व्हेन ही केम बैक, तो जो गवर्नर ऑफ कश्मीर थे उस वक्त, ही इंसाइटेड ग्लाइपो कि यू रिवोल्ट अगेंस्ट दिस सबजुगेशन. तो कहते हैं ग्लाइपो ने फिर रिवोल्ट किया. So for the first time, the Ladakh was captured in 1835, जो first subjugation था. उसके बाद 36 में he revolted, Glaipo, the ruler, and he then कहते हैं कि within 10 days, Zorawar Singh reached, and then he again subdued, and he put somebody else as a ruler in 1836, and then because he was actually a general, so he tried to protect the territories. So he built a fort there. Lake के बाहर, वो city के बाहर वो fort है, and he installed a contingent of 300 people there, under the Lale Sea. Okay. So he said that so that they have a command there who would protect if there is any revolt. तो पहले तो आगे थे, अब उन्होंने अपना contingent रखा. But then that ruler was disloyal. So the earlier ruler was again brought back in 1938. So this was Leh. अब Leh के बाद आगे क्या आएगा? बाल्टिस्तान. That was 1839-40 जब वो इन्होंने शुरू किया. And actually बाल्टिस्तान में they were called because there was a conflict between son and father. अहमद शाह थे और मोहम्मद शाह उनके बेटे. तो वो बेटे ने कॉल किया था कि मुझे गद्दी दिलवाओ. तो then they went there, and in this they were helped by local Dard people also. And what finally people? Dard tribe. Achha, okay. So they were helped by them, and then Muhammad Shah, he was installed on the throne, and he also agreed to pay a tribute. The annual tribute hota hai, taxes. After this, the next expedition was, naturally they wanted वेस्टर्न टिबेट, क्योंकि उसके बाद एक्सपेंशन किस तरफ करेंगे. एंड यू थिंक ऑफ इट, बिकॉज दे ऑलरेडी हैड फेस्ड दैट स्नो क्लैड माउंटेन्स, वो ट्रगेड माउंटेन इन ले एंड बाल्टिस्तान, एंड दे वर अवेयर कि आगे फर्दर कैसा होगा. बट स्टिल दे हैड द स्ट्रेंथ, दैट विजन ऑफ दैट जोरावर, जनरल जोरावर सिंह की, वो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने ये भी करना है. तो उस पे दे अटेम्प्टेड दिस आफ्टर डेथ ऑफ Ranjit Singh, because Ranjit Singh was not in favor of it. And at that time British were also active, और British के साथ रंजीत सिंह की ट्रीटी साइन थी कि they would that cross सतलुज के पार वो नहीं आएंगे और इस तरफ से वो नहीं जाएंगे. And then they thought कि शायद Britishers would not like it कि we are going into that direction. बट देन दे थॉट कि ब्रिटिशर्स का अभी तक कोई अंग्रेज वहाँ गया नहीं, शायद एक मूलक्राफ्ट थे जो कभी ले गए थे, उससे पहले तो वो गए नहीं थे. तो ब्रिटिशर्स को शायद इसका इतना इशू नहीं होगा. सो दे थॉट ऑफ गोइंग टू वेस्टर्न टिबेट. तो वेस्टर्न टिबेट के लिए दे स्टार्टेड एंड दे रीच्ड फर्स्ट मानसरोवर एंड कैलाश. देयर he performed pilgrimage. And when they were at Purang Valley, that was a valley where he was caught unaware by Tibetan forces. तो वहाँ पर एक battle हुई hand to hand. अच्छा. But see the dweller, he was able to defeat the Tibetan forces in their land only. और कहते हैं कि जनरल जोरावर सिंह ने उनका फ्लैग भी कैप्चर किया था, कलर्स फ्लैग. और वो फ्लैग आज भी जैक राइफल्स के, फोर्ट जैक राइफल्स के ऑफिस में है, आर्मी ऑफिस में है. अच्छा. उनका जो टिबेटन्स का लिया था. सो फिर आफ्टर दैट ही वेंट टुवर्ड्स साउथ. तो ही रीच्ड द प्लेस कॉल्ड तकलाकोट, एंड बाय दैट टाइम ही हैड
captured I think more than 5 miles of the Tibetan country. मतलब वो कैप्चर करते जा रहे थे. And then the winter set in. तो उनको लगा कि अब विंटर्स आ गए हैं, स्नो होगा, तो आई शुड स्टॉप माई एक्सपेंशन. And there was a place nearby Tirathpur. This that I'll go there, stay, and then start it again in the next summers. And as he used to seal all his frontiers, so he did, but he forgot one pass which he did not seal, which he did not protect. And when the snow started falling, so Tibetans, because they were used to that snow, so they attacked the general. And at that time general could not come out victorious. In fact, he himself died in that battle of Toyo. And लेकिन ये एक ऐसी जंग थी जिसमें ऐसा बहुत कम होता है कि एनिमीज भी आपको रिस्पेक्ट करें बिकॉज ऑफ योर वैलर. This was one of those. Yes, that was, matlab, it is said that when he was killed, he died. So his head was speared and taken to Lhasa, वो पैलेस के बाहर उसके सर को लगाया. So वो उसको टांग दिया तो कि लोग देखें कि मतलब what those Tibetans were trying to show is कि इतना बड़ा जनरल तो उसको हमने मारा है और उसका दिया है. But at the same time, they respected also. It is said that the Tibetan forces, the place where he was killed, वहाँ आज भी उनका सेनोटाइफ है, उनकी समाधि बनाई हुई है और उसको वो वर्शिप करते हैं. तो ये भी एक बड़ा रेयर है कि दुश्मन को आप उसको एक ऑनर दें. But that shows कि what kind of general he was. So after Zorawar Singh was killed by but these forces did not leave the place. They kept fighting till January 1842. उसके बाद ही जो बस्तीराम है, जनरल बस्तीराम है, he held the position, and after that they retreated. So some were imprisoned, they were taken as prisoners of war, some fled away and they came to Punjab. Many of the soldiers, they were captured as prisoners of war and taken to Lhasa. And then they said that they were left off. But many of them, they stayed in Tibet only and they married the local women. और कहते हैं कि जो तिब्बत में एप्रिकॉट, ग्रेप्स, ये उन लोगों ने ही इंट्रोड्यूस किया था जो उधर सेटल हो गए. अच्छा. और जो ही यहाँ पर एक और चीज़ है विच इज़ अगेन कंट्रोवर्शियल, we talk about Dogra army, but actually वो if you look at the Sikh sources and the Tibetan sources, जो Tibetan army के sources हैं उनमें देखेंगे, so they refer to it as Sikh regiment, and it was many of the Sikh soldiers, they actually stayed there and married the local women. So आपके Tibetan sources में भी वो Sikh army ही represent करते हैं, they don't say Dogra army. So largely because it was the army of the Sikh state. Maybe तो mixed था शायद, mixed था कि Sikh soldiers भी थे और Dogra soldiers भी थे. Probably that would be the reason because जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपने भी ये चीज़ कही कि डोगरास भी क्लेम करते हैं, सिख भी क्लेम करते हैं. रिसेंटली आई वाज इन अमृतसर, तो वहाँ पर जो गोल्डन टेम्पल में म्यूज़ियम है या कुछ और एक दो जगह है जहाँ पर ये हिस्टोरिकल पिक्चर्स और इस तरह की चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले की हुई हैं. तो आई सॉ जनरल जोरावर सिंह जी की फ़ोटो वहाँ पे. आई फेल्ट सो गुड, बट देन आई थॉट कि ये क्यों क्लेम कर रहे हैं, है ना. बट प्रॉबेबली टेक्निकली सिख एम्पायर, लेकिन सिंस ही वॉज द डोगरा और राजा वॉज द डोगरा जिनके वो जनरल थे, है ना. तो इमीडिएट बॉस वॉज गुलाब सिंह. हाँ, तो बेसिकली तो वो उन्हीं की एम्प्लॉयमेंट में थे, है ना. और वो फर्दर वाज, हाँ, बट उनके रिपोर्टिंग मैनेजर वाज रंजीत सिंह जी, अगर हम आजकल की टर्मिनोलॉजी में कहें तो. दैट वेज या वी कैन से, बट डोगरा तो थे. तो हम तो कहेंगे कि डोगरा आर्मी. वी टेक प्राइड. यस, वी डू टेक प्राइड. आई थिंक this has been quite insightful और बहुत interesting ये सारी कहानियाँ थी. और आई एम श्योर कि
बहुत सारे और एनेक्डोट्स होंगे, लेकिन हमने मेजर चीजों को इसमें कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। और क्योंकि हम गुलाब सिंह जी की बात कर रहे थे, तो उनके जनरल की बात, गुलाब सिंह इज नॉट कंप्लीट विदाउट हिज जनरल, ऑफ कोर्स। तो जो हमारा जो JNK का एक नक्शा एक टाइम पे हुआ करता था, वो बनाने के लिए यही दो लोग जिम्मेदार हैं, और इसलिए इनकी बात करना बेहद ज़रूरी था। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राजपुरी, that is present day राजौरी। तो that was a principality. So we are going to talk about what was it. We are basically talking about its historicity till the time when it was annexed by Jammu state. राइट। क्योंकि जम्मू का जो ये मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना है, तो वो तो प्रिंसिपलिटीज को सबड्यू करके ही बना है। तो अब हम उन प्रिंसिपलिटीज की बात करेंगे डेफिनेटली। तो टिल वी मीट अगेन, आप डेफिनेटली अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स में। आपके पास कोई स्टोरीज हैं आप वो शेयर कीजिए। कुछ लोग तो बहुत ऐड ऑन करते हैं हम जो भी बातें करते हैं उसमें। सो वी आर रियली डिलाइटेड कि आप लोग ऐड ऑन भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड टिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग दिस स्पेस। आप शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपकी नॉलेज में ऐड ऑन हुआ है हिस्ट्री महकमा विद जूही की वजह से। थैंक यू वेरी मच मृणालिनी जी। थैंक यू जूही। Until next time, bye.